28 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में स्केलिंग माउंट यूपीएससी पुस्तक का विमोचन करने पहुंचे। इस प्रेरणादायक पुस्तक के लेखक हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रतिष्ठित अधिकारी श्री सज्जन यादव जी। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से उन युवा आईएएस अधिकारियों की संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक यात्राओं को बड़े ही सूक्ष्म और भावपूर्वक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिन्होंने कठिन परिश्रम और अदम्य संकल्प के बल पर यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया। मनीष खुराना जी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया इस बुक के आइडियाज, मकसद के बारे में, पर्पस के बारे में कुछ रोशनी डालें। मनीष खुराना जी। It is indeed a pleasure for me to represent Penguin Random House India today on the occasion of the book release function of Scaling Mount UPSC. I would like to thank Shri Dharmendra Pradhan ji, the Honorable Minister of Education for the Government of India, for graciously sparing his precious time this evening to be with us. Finally, Dr. Sachin Yadav, he is a brilliant author, he is a brilliant storyteller, and I have had this association with him for the past 3 years, and together we have produced some brilliant ideas. This is my second book with him, and when we decided to publish this book, it was a no-brainer for us. The idea was absolutely spot on. We discussed various ideas. This was definitely not on the plate, but during the course of our discussion, we came up with the idea that we should definitely write something. I mean, the author should definitely write something for those who aspire to join India's coveted civil services, and that is where our discussion became fruitful. I gave him this idea, and he immediately liked it, and he was kind enough to really write a book proposal quickly for me, and then we got it approved, and we finally published this book this year. Publishing any book at Penguin is actually a long drawn process. Every book proposal that we receive goes through a rigorous, and this book also went through the same. But as I said earlier, the idea was absolutely brilliant, and we wanted to publish this book to inspire young minds, stories of young IAS officers who made it big despite all odds. Thank you so much again for being here this evening. Please enjoy the evening. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे अच्छी बात और क्या होगी कि इस पुस्तक के लेखक खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, यानी सोने पे सुहागा। लेखक डॉक्टर सज्जन यादव 1995 बैच के यूपी काडर के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वित्त मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। आपकी पिछली पुस्तक इंडियाज़ वैक्सीन रोड स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री एक नेशनल बेस्ट सेलर है, जिसका स्पेनिश के साथ साथ 16 भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया और प्रकाशन भी किया गया। ने प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से डॉक्टरेट में उपाधि प्राप्त की है। आपने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सर्वोत्तम जिम्मेदारी प्रदान की है, सेवाएं प्रदान की है। आपको कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिसमें 2017-18 के लिए और जनगणना कार्यों में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पदक भी इसमें शामिल है। तो अब मैं लेखक डॉक्टर सज्जन यादव से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने विचार आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। Thank you so much, Manisha ji, Dharmendra Pradhan sir, Learned Amitabh Kant sir, G20 Sherpa of India, Secretary Expenditure Mang sir, Vineet Goyal sir, Secretary ST Commission, Manish Khurana, my commissioning editor, friends from the media, my colleagues from the Ministry of Finance, senior officers, some of the heroes of this book who are present today, Wasim, Anjali and parents of Bharat Singh.
and dear friends. First of all, I am extremely indebted to Honorable Minister Sir, because when I requested him for launch of this book, he didn't even take 1 second. He was so forthcoming, so warm. So thank you very much, sir. And being education minister, sir, मेरे को लगता है कि आप बेस्ट हैं ये वाली बुक लॉन्च करने के लिए, आपसे अच्छा नहीं हो सकता। इतना अच्छा आपने रिफॉर्म किया एजुकेशन सेक्टर में, और अगर कोई लीप जिंदगी में ले सकता है, नीचे जमीन से आसमान पर जा सकता है सर, तो इनमें किया है। उसी कारण से इंडिया के लाखों यूथ जो इतना एस्पायर कर पा रहे हैं, इतना नई नई ऊंचाइयों पे पहुंच पा रहे हैं सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, उनके सपने पूरे करने के लिए। एंड आई एम extremely grateful to Amitabh Kant sir. He is a role model for all of us. I always, whenever I want to do something or I want to become like someone, I always think of him. इनकी बिल्कुल तस्वीर सामने आती है in all aspects. So dynamic, so hardworking, so sincere and so helpful sir. So आपने भी एक भी मिनट नहीं लिया, पहले मेरी रिक्वेस्ट मानी फॉरवर्ड के लिए, and just over a WhatsApp message he agreed to grace this occasion today sir. I am so indebted. My family and my publishers are so indebted to you sir. Thank you very much sir. And after this, so for any author I would say I am very new author, I am a bureaucrat, I am hardly an author. मनीष खुराना कुछ भी बोले सर, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है कि सब्जेक्ट चूज करना। जब मेरी पहली बुक पब्लिश हुई सर, मैंने ख़त्म कर दी थी जनवरी 2022 में। उसके बाद मैं 1.5 साल तक ढूंढता रहा कि मैं क्या लिखूं, किस पे लिखूं, कैसा लिखूं। तो उस समय में जो ये हमारे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने किया है कि आईएएस ट्रेनी अपने ट्रेनिंग के फैग एंड में लास्ट में 8 वीक के लिए भारत सरकार आते हैं। बहुत ही नया और अच्छा इनिशिएटिव है। और इसमें मैं 1 साल के बाद अगले साल इतने यंग ब्रिलियंट बच्चों से मिलता रहा इस मिनिस्ट्री में रह के, उनकी बातें सुनी, और उनमें से मैक्सिमम वैसे ही हैं सर जो एजुकेशन से, जो हार्डवर्क से, जो सिंसियरिटी से आज ज़मीन से आसमान तक पहुँचे हैं, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। और उनकी कहानियाँ सुन सुन के मुझे ये भी लगा कि ये तो मेरी स्टोरी है। और यहाँ जो मेरे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे सिविल सर्विसेज के मेरे साथी, उन सबको भी लगेगा कि ये तो उन्हीं की कहानी है, उन्हीं का सेक्रीफाइस, उन्हीं का दर्द, उन्हीं की हार्डवर्क, उन्हीं की सिंसियरिटी, उन्हीं का टाइम मैनेजमेंट, उन्हीं का डेडिकेशन। तो इसमें सर, और उसके बाद जब एक और बहुत मोटिवेशनल काम हुआ कि वहाँ पे भरत सिंह असिस्टेंट सेक्रेटरी बन के आए, मेरे से मिले। भरत सिंह हमारे घर में ही रहते थे, जो हमारे बंगलों के साथ में अटैच्ड क्वार्टर हैं, उसमें उमा टिक्कम भरत सिंह रहते थे। और उस बच्चे की स्ट्रगल ने जितना मोटिवेट किया, मेरे को लगा कि ऐसी कहानियाँ हमारे बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, ऐसी स्टोरीज बच्चों तक जानी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो। मकसद केवल आईएएस बनना नहीं है सर, मकसद है किसी भी फील्ड में आपको टॉप करना है, किसी भी फील्ड में आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज आपको मोटिवेट करेंगी। जब आपको लो फील होगा, आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगी। जब आपको लगेगा कि आपका सपना शायद पूरा नहीं हो, तब आपको वापस आप में जान डाल देंगी। तो ये स्टोरीज मैंने सोचा मैं लिखता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे से आई ये स्टोरीज। हमारे बीच में अंजलि शर्मा जी हैं, जिन्होंने जो सिक्किम के एक सुदूर गांव में, सिक्किम के गंगटोक में रहती थी, केवी में पढ़ी हैं, और जो किसी कारण से जिनकी अपनी क्लास 10th की एज में थोड़ा आईसाइट चली गई। बहुत ऐसे समय में इतना दृढ़ निश्चय चाहिए, इतना हार्डवर्क चाहिए, इतना डिटर्मिनेशन चाहिए, वहाँ से उठ के एक आईएएस अफसर बनने का वो अंजलि ने कर दिखाया। वसीम है हमारे बीच में ही मौजूद है, एक छोटे से गांव से कश्मीर के, वहाँ से आके अपने बलबूते पे अपने सपने पूरे किए इन्होंने। और तो ये सब मिसाल हैं, ऐसे और 4 स्टोरीज इस बुक में हैं, जो कि मेरे को लगता है कि हर फील्ड में हर बच्चे को, और बच्चे ही क्यों, बच्चों के पेरेंट्स और बड़े लोग भी, सपने तो सबके होते हैं, सपने तो कोई एज के हिसाब से होते नहीं हैं। तो जो सपना देखता है उसको ये लोग मोटिवेट करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानियाँ जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि फील्ड प्रिस्क्रिप्शन सेम है। मैं तो डॉक्टर भी हूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं, कोई भी बीमारी होती है तो सक्सेस का तो कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है। सक्सेस की 4-5 दवाइयाँ ही हैं जो इकट्ठी लेके खा लें तो हो जाता है सर।
तो वो है कि एक बड़ा सपना होना चाहिए और फिर दिन रात उस सपने को जीना चाहिए, उसी में डूब के रहना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, सेक्रीफाइस होनी चाहिए। तो ये जो हम डॉक्टर लिखते हैं RX इंटू ये 5 1 2 3 4 5, ये हर फील्ड में लागू होते हैं, इसलिए ये किताब सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ सर आई वुड लाइक टू वंस अगेन थैंक आवर चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर। I would like to thank Amitabh Kant sir, my secretary expenditure, and all the colleagues who are present here. Also, I would like to also thank in absentia Dr. T.V. Somnathan. He was my secretary for 4 years, and the way he has taught us time management, dedication, sincerity. So he has a very big role in making me from I'm still bureaucrat, but taking out author from the bureaucrat inside me. So I would like to thank him also here, and I also like to thank Penguin, Random House, the entire team, and Manish Khurana. I would like to thank my wife Sunita, Karan, Sia, and all my friends and colleagues and friends from the media. Thank you very much for giving me this opportunity to stand. Personal hardship is a very powerful reminder that resilience is born from struggle. It reflects the reality of countless aspirants who face similar hurdles, yet they continue to pursue their dreams with unwavering resolve. Satyam Gandhi's story is also a great source of learning, which resonates very profoundly. His ability to turn setbacks into motivation shows us the grit required to succeed. It shows us the incredible potential of youth in India and reminds us that determination, when paired with a clear goal, can lead to remarkable accomplishments. Anjali Sharma's journey is the heart of the book. Despite losing her eyesight, her vision for the future remained unclouded. Anjali exemplifies how, regardless of the obstacles we face, the human spirit will prevail against all odds. Her triumph speaks to the core of why we pursue the IAS. Not the glory, but for the opportunity to uplift others and ignite change in our communities. As Sajjan has beautifully captured in this book, the journey to the IAS is about recognizing the privilege we hold as public servants and understanding the weight of our responsibilities. In a world filled with complex challenges, from education and healthcare to infrastructure and environmental sustainability, the role of civil servants becomes even more critical. We have the opportunity to shape policies that directly impact lives, to influence the course of development, and to be the catalyst for positive transformation in society. This book serves us as an important reminder that with this privilege comes the duty to listen, to learn, and to lead with compassion. If India has to be the Viksit Bharat of 2047, as envisaged by our Prime Minister, compassion has to be critical. Particularly learning outcomes, health outcomes, nutritional standards, and without improving physical quality of life index, it will be difficult to achieve this. This book is truly remarkable in many ways, and I really extend my heartfelt gratitude to Sajjan for sharing these remarkable stories and in turn for inspiring future generations through this wonderful resource. As you will turn the pages, you will find encouragement in the journeys of these 7 heroes and heroines that recognize that their victories are not theirs alone. They belong to all of us who strive for excellence and the betterment of our society and the betterment of India. Scaling Mount UPSC is a call to action for every aspiring civil servant and a reminder that no dream is too big when you have the courage to pursue it. यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव जो सज्जन जी के मूलतः मित्रगण हैं, उनके सहयोगी हैं, और समाज जीवन के सभी महानुभावगण और जो 7 में से 3 यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय अंजलि, भरत सिंह जी की पूज्य माता पिता,
और अनंतनाग से आए हुए वासिम, मैं आप सबको बधाई देता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए। सज्जन जी से मेरा बहुत बताया और उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं क्या। ना जाने मेरे को क्यों लगा कि इस किताब को विमोचन करने के लिए मेरे को जाना चाहिए, मैं उस आनंद के क्षण में रहना चाहिए। मित्रों, यहाँ ड्रीम की बात हुई, ड्रीम से इंस्पिरेशन तक बात हुई, लेकिन इन दोनों के बीच जिस प्रकार की स्टोरी इसके अंदर है, और ये स्टोरी तो साथ का है। समाज जीवन में सभी सफल व्यक्ति के पीछे एक स्टोरी होती है, एक ड्रीम होती है, एक इंस्पिरेशन होती है, और एक इंस्पिरेशन बनना जिंदगी में किसी ना किसी व्यक्ति हमको प्रभावित करता है। बचपन में कभी हमारे माता पिता करते हैं, कभी भाई बहन करते हैं, कभी दोस्त साथी करते हैं, कभी शिक्षक करता है। जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अनेक व्यक्तित्व हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं। ऐसे इन सातों को भी किसी ना किसी चीज ने इंस्पायर किया होगा। लेकिन मैं आप सबकी अनुभव के ऊपर और मेरे खुद के अनुभव के ऊपर कहता हूं, एक चीज को लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, लक्ष्य यूपीएससी के लिए जो एक एस्पिरेशन था, एक आकांक्षा था, इसको करके दिखाना। हमारी मन में एक जो इनहेरेंट चीज रहती है एस्पिरेशन की, हमें इसको यहाँ तक पहुँचाने में सफल होती है। निश्चित रूप में उस समय की अनुभव को, यानी जब वो अपने उस जर्नी, जब वो सेप ले रहे होंगे, और इस किताब में मैं 2-3 पन्ना पलटते पलटते मेरे संबंधित विषय 2-3 है। उसमें मैं एनसीईआरटी का टर्म देखा, मैंने इसमें जेई देखा, ये सब हमारी सेक्टरल टर्म है। और मैं तो कभी कभी एनसीईआरटी वालों को कहता हूँ कि कहीं देखो, जब अभी अभी यूपीएससी की रिजल्ट आया, कोचिंग वालों ने बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया। मैंने एनसीईआरटी वालों को कहता है कि भाई आप भी विज्ञापन दे दो। आफ्टर एनसीईआरटी किताबें तो सब पढ़ते हैं। हमारी देश की फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी की किताब से बनती है, और उस किताब को पढ़ के, और इस किताब में भी एनसीईआरटी के उल्लेख है। मित्रों, मैं आज आपके सामने 2 विषय ये कहने आया हूं। देखो, लक्ष्य हम किसी भी तरीके से प्राप्त कर ही लेते हैं। प्रभु के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हमको पुरुषार्थ हमारी नियति में है। 140 करोड़ लोगों के अंदर जितने लोग हम इस हॉल में बैठे हैं, हम लोगों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, हम लोगों की जो प्रवास है, हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों की जो कैपेसिटी, हम ही जानते हैं। ये सब को अनुभव करते हुए हम सब यहाँ पहुँचे हैं। सबकी अपना अपना एक स्टोरी है। मैंने 1-2 जब उनके कम आयु है, मैं उनको पूछा कि आप इसमें क्यों हो? बोले सर यूपीएससी लिखना है, ये एस्पिरेशन है। और आते हैं कहाँ से? भारत की संपन्न लोगों के घर से कम बच्चे यहाँ आते हैं। ऐसे नहीं आते, ऐसे नहीं है। जिनके घर में सिविल सर्वेंट है, जिनके घर में मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि, जिनके घर में उनको प्रशासक बनने की एक इंस्पिरेशन आती है। लेकिन नहीं तो सामान्य बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, और वो बच्चों के मन में जो एस्पिरेशन रहता है, इसको कहा नहीं जा सकता। सिर्फ ये एक मटेरियल अचीवमेंट के पीछे यहाँ तक लोग आते हैं। सबकी एक लक्ष्य रहता है, सबकी एक दायित्व रहता है। हम एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में 2 विषय बड़े आग्रह के साथ उल्लेख किया जाता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी के ज्यादातर लोग राइट्स सेंट्रिक होते हैं। अधिकार हमको कितना मिला, क्यों नहीं मिला, फिर उसको धीरे धीरे कर वो राइट्स एंटाइटलमेंट में परिवर्तित होती है, ध्यान नहीं आती है। लेकिन उस दुनिया में हम लोग घूमते हैं। लेकिन मित्रों, राइट्स तब पूरा होती है जब कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मेरे दृष्टि से मानता हूँ, भारत की सिविल सर्वेंट्स, हमारी तो 5 साल में एक बार परीक्षा होती है। आपका एक बड़ी परीक्षा एक बार होती है, लेकिन प्रतिदिन होती है। एक बार तो एंट्री के लिए परीक्षा होती है,
10 लाख से 1,000 तक आना। अभी मैं कई प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पीछे समीक्षा कर रहा हूं, उसमें यूपीएससी के एग्जामिनेशन सबसे टॉप माना जाता है। ये दुनिया की सिद्ध बात है कि हमारे देश की यूपीएससी व्यवस्था फुल प्रूफ है, उसको और बढ़िया करना पड़ेगा, आप लोगों को ही करना है। मित्रों, इसमें जब आ ही जाते हो आप, हम फेल हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी की प्रोसेस से हम लोगों को निकालने की भी रास्ता है। आप लोगों को निकालने की रास्ता 30-35 साल है, निकालना है ही नहीं, वन गेट एंट्री है। प्रतिदिन आप तपस्या करते हो, प्रतिदिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, निर्णय करते हो। मैं अधिकारियों को, मैं खूब कम आयु में विधायक बन गया था, वहीं ऐसे यंग आईएएस ऑफिसर मेरे साथ रहे, मैं उनको पूछ रहा था, कुछ विषय में उनकी जानकारी ले रहा था, उनकी प्रोस्पेक्टिव समझ रहा था, उनकी दृष्टिकोण समझ रहा था। मित्रों, मैं मेरा अनुभव से कहता हूं, आप लोग प्रतिदिन परीक्षा देते हैं। निर्णय फाइल में जब करना होता है, इसलिए किताब सज्जन जी आगे आपका जो अभी मत लिखना, अभी आपको एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ही और काम कराएंगे, लेकिन आगे आप ऐसे किताब, आप में से कोई किताब लिखें, और लिखा भी होगा, ऐसा नहीं कि वो पहली बार मैं अनुरोध करूंगा, पहले भी लिखा गया होगा कि भारत की पिछले 78 ईयर्स की जर्नी में हमने कई पड़ाव देखे। तब आज़ादी के समय में सरदार पटेल ने आप लोगों के बारे में कहा था स्टील फ्रेम है, अभी तो ऑल्टरनेटिव मटेरियल की जमाना आ गया। अमिताभ कांत, हमें खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा। आज की समाज की आवश्यकता क्या है? हम जिस एस्पिरेशन से यहाँ ज्वाइन किए थे, क्या उस एस्पिरेशन को हम, उस एनर्जी को, उस प्रेरक तत्व को हमारे अंदर जिंदा कर पा रहे हैं क्या? मित्रों, जीवन में यही सबसे बड़ी चुनौती है। मैं अपेक्षा, ये दुनिया में, हमारे देश में उस प्रेरक तत्व को अपने कैरियर की, और कैरियर तो कोई रिटायरमेंट एज के साथ नहीं होता है, काम करने वाला व्यक्ति जिंदगी की लंबे समय तक काम करता है और अपना बड़ा लकीर भी खींच के हो जाते हैं। मेरा शुभेच्छा रहेगा, ये जो एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन के बीच में ये भी एक एआई है। इस एआई के तत्व को आप जिंदगी भर आपके अंदर रखो और आपके सहयोगी उसके अंदर रखे, और कोई भी चीज, कोई भी अच्छे विषय को लंबे समय तक स्मृति में रखने का उपाय है किताब। आज ऐसे स्मृति को, शायद किसी को इसमें से कोई छोटा चीज लगा होगा, लेकिन उस छोटे चीज में क्या बड़ा दर्शन था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, इसको निश्चित रूप में आने वाले दिनों में कोई पीढ़ी उसको पढ़ के अच्छे रास्ते पे और जाएगा। ये किताब निश्चित रूप में उसको सहायक होगा। फिर लेकिन मैं अंत में एक अनुरोध आप सबको करूंगा, किताब, और हम जिस स्टेज पे आज दुनिया के अंदर है, टेक्नोलॉजी, आइडियाज और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बदल रहा है। हमारे देश में उस आवश्यकता, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक टेम्पलेट हम लोगों के सामने रखा है, 2047 तक विकसित भारत करना। लेकिन विकसित भारत करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है नहीं, हमें उस फ्रेमवर्क को बनाना, ये एक बेसिक फिलोसफी है। उस फिलोसफी को टाइम अप्रोप्रिएट करना, ये हम लोगों की दायित्व है। हम समाज जीवन में विशेष करके पॉलिसी में जो लोग हम काम करते हैं, उस किताब से जिन चरित्रों के बारे में लिखा गया है, जो उनकी जर्नी आगे भी होगा, उस पॉलिसी को अभी एडुकेशन हुई, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट हमको आने वाले दिन में पूछेगा क्या कर रहे हो उसमें, और एजुकेशन कैसे करेंगे,
अभी भारत में कम से कम 1 लाख AI एक्सपर्ट तो है ही। सबसे सुनना, सबसे समझना, और हमारी लक्ष्य क्या है, हमारी दायित्व क्या है। और मेरे को अच्छा लगा, अंजलि स्कूल डिपार्टमेंट में भी असिस्टेंट सेक्रेटरी की काम कर रही है। भारत में एक बड़ा तबका के बच्चे, साइजेबल बच्चे फी बेस्ड स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट आज भी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है। हम सबकी दायित्व है उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा, सुदूर इलाका में पढ़ने वाले बच्चा आज इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एरा में एडवांस प्रोसेस को, तो AI हो या और आने वाले दिनों में क्वांटम की कोई विषय हो, इसको समझने के लिए उसके लिए क्या प्रोसेस बनाएंगे, क्या व्यवस्था बनाएंगे, ये दायित्व हम सभी के ऊपर है। हम दायित्व लेंगे तो आने वाले दिनों में किसी की राइट्स सुरक्षित होगा, किसी की राइट्स सुरक्षित होगा, तब जाके उसके मन में एस्पिरेशन आएगा कि मैं भी कुछ बनूंगा। उसमें भी कुछ बनूंगा के अंदर हमें एक कैरेक्टर इस देश की DNA में है, कभी वो मैं के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचता है। My father, who's the author of the book, and our entire family, I express my heartfelt gratitude to the Honorable Union Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan Ji. So we are truly honoured by your presence. We also thank Shri Amitabh Kant Ji, India's G20 Sherpa, for his kind presence and for always motivating all of us. Our sincere thanks to Mr. Manish Khurana, Senior Editor, and the entire Penguin Random House team. We are all really proud of all the young officers who have inspired this book. We wish them all the very best for their careers and their life ahead. Had my father worked harder and written this book maybe a little earlier, I would have written the exam. Just joke. No, but my sister and I are very lucky to have such supportive parents who have allowed us to pick a field of our choice, as long as we give it our best. We would like to thank all the distinguished guests, our friends, well-wishers, friends from the media, for joining us today to celebrate the launch of Scaling Mount UPSC. Thank you very much. यह आयोजन न केवल एक पुस्तक विमोचन था, बल्कि उन सपनों और संघर्षों का भी उत्सव था जिन्होंने आज के युवाओं को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा दी।